Hello everyone. So today we are going to talk about CSAT 2025 logical reasoning section, and we are going to cover set D in this particular session. So we are going to cover all the questions of logical reasoning that have appeared in 2025 CSAT. So let's start. So now we are going to start this question. It says that a solid cube is painted yellow on its face, on all of its faces. The cube is then cut into 60 smaller but equal pieces by making minimum number of cuts. Which of the following statements is correct or are correct, right? So basically, when I am going to have a cube like this, and I need to make how many pieces? I need to make 60 pieces out of it, right? So basically, when I'm going to make 60 pieces out of it, so how can I break 60? So basically, this side will be divided into some parts. This side is also going to be divided into some parts, as well as this side is also going to be divided into some parts, right? So basically, let's say here I'm going to have P parts, here I am going to have Q parts, here I am going to have R parts. So total number of pieces I am going to get is P into Q into R, and that's equal to 60. Okay. So if I want to minimize this, I am going to have 6 into 5 into 2. That is one possibility, right? Other possibility, I can have 3 into 4 into 5. So that is another possibility, right? So here in this side, I am going to have how many pieces? 6. To make 6 pieces, how many cuts are needed? So the cuts needed here are 5. How many cuts needed to make 5 pieces? So you need 4 cuts, and here how many cuts you need? 1 cut. So basically, what is the total number of it is talking about the minimum number of cuts. So what is the minimum number of cuts? In this case, I am going to get 10 cuts, right? Let's take this scenario. So if I am saying P is 3, so I need 3 parts here. So how many cuts are needed? 2 cuts. In this, how many to make break a side into 4 parts? How many cuts are needed? 3. And here, how many cuts are needed? 4. So total number of cuts needed in this case are 9. So what is the minimum number of cuts that are needed? That is going to be 9. So we can calculate this by just breaking 60 into smaller numbers and get the answers like this. So first statement says that the minimum number of cuts is 9, and I need to make minimum number of cuts. So basically, first statement is right. Okay. Now let's look at this. So minimum number of cuts are this, right? Now when I am going to calculate the number of faces that have not been painted, so basically, if I am talking about that particular question, so that formula is given by P minus 2 into Q minus 2 into R minus 2. So 3 minus 2 is 1, 4 minus 2 is 2, 5 minus 2 is 3. So how many faces are going to have how many cubes are going to have no faces painted? That's going to be 6. So basically, when question says that I need to make 60 equal pieces by making minimum number of cuts, so I have considered few possibilities. One is going to be this, one is going to be this, but this is not giving me minimum number of cuts. This is giving me minimum number of cuts. So the only possible value I am going to take is this. So this is my actual possible combination, that is 3 into 4 into 5. So one side is going to be divided into 3 equal parts, second side is going to be divided into 4 equal parts, third side is going to be divided into 5 equal parts. So when you have 3 equal parts, it means 2 cuts. When you have 4 parts, you need 3 cuts. When you have 5 parts, then you need 4 cuts. So so minimum number of cuts that we are going to see is 9, right? So that we are going to get. Now after that,
So first statement, whatever it is saying, it is right. Now second is saying that how many faces, how many cubes are there that have no faces painted. So for that we directly have a formula that if P into Q into R is 60, the number of cubes that have no face painted is P minus 2 Q minus 2 into R minus 2. That we have already discussed in our class, right? So basically answer of this question is, so second statement is also going to be right. So answer of the first question is going to be option C, that is both statements are correct. That is option C. Now let's move on to the next one. What does it says? So it says 7, 24, 25, 12, 16, 20. Then what is the value of 16? 63. Now this is a question of mathematical operations. I don't know how it is happening. So if I say 7, 24, 25, okay, so the only thing I can think of right now, I need to use 7, I need to use 24, and I need to make 25. How I can do that, right? So there should be some relation between 7, 24, 25. So if you have seen some Pythagorean triplets, you are going to figure out that 7 square plus 24 square is equal to 25 square. Okay. Now if I look at this one, that is 12 square plus 16 square, that's equal to 20 square, right? Okay, now question is talking about this, so that is going to be 16 square plus 63 square. So basically that is I can say that is directly equal to 65 square. So answer of this question is going to be 65. That's option C. Now if you do not know this, if you don't know how to calculate this, okay, so let me tell you how to calculate it very easily. 16 square is going to give you unit digit of 6. Okay, 63 square is going to give you a unit digit of 9. So basically their summation is going to have a unit digit of 5. 70 square is going to have unit digit of 0, so this can't be the answer. 66 square is going to have a unit digit of 6, that can't be the answer. 65 square is going to have a unit digit of 5, so that will be the answer. 64 square is going to have a unit digit of 6, again that cannot be the answer. So basically even if you don't know this, and if you use the basic logic of unit digit, how to calculate unit digit, how unit digit work, so basically you can still calculate this question not in a lot of time. It is not going to take a lot of time, it is going to take very less time even to figure out that 16 square plus 63 square is equal to 65 square. Okay, now let's move on to the next one. What does it says? If A is less than equal to B, okay, so it says A is less than equal to B. Now it says that C is less than B, okay, so C is less than B, okay. Now C is also less than D, C is also less than D, and E, so all of these are same, so I am going to say H is equal to G is less than equal to F, that is less than E, and that is less than D. Okay, now it says that B is always greater than E. That's what I need to figure out. Okay, I know B is greater than C, D is also greater than C, D is also greater than all these numbers, right? But can I actually say that C is greater than E? There might be a possibility, might not be a possibility, right? Now B and D, which one is greater? I can't calculate, right? There are chances that B is greater than D, there are chances D is greater than B, I don't know, right? So how can I say that B is going to be greater than E? It might be greater than E, it might not be greater than E. Even if you are unconvinced, I'll give you an example. Let's say the value of D is 20, value of D is 10, and value of C is 5, right? And let's say value of E is 18, and value of E also can be 7. So basically there is a possibility that B can be greater than E, B cannot be greater than E. So in this case I cannot say that B is always greater than E. So first statement that we have is false. Okay, now let's look at the second one. It says that P is greater than Q and Q is equal to R. R is greater than equal to S. S is equal to T. Okay,
Now t is smaller than u, that is equal to v, and v is also greater than w. Okay, now it says that s is less than v. Okay, so s is less than v. Now, sorry, it is v, right? Okay, so basically I have t is smaller than what? S. T is equal to s, right? And t is less than u, less than v. So if t is less than u, less than v, it means, it does not mean t is smaller than v, it means t is less than equal to v. So if t is less than equal to v, s will also be less than equal to v. So basically there are chances that s might be equal to v, might not be equal to v, it might be smaller as well. So it means second statement will not be true because it says always less, but there are chances that s might be equal to b. So because of that, this statement will not be considered correct. So here my answer of this question is going to be option D. Okay, now let's look at the next question. What does it say? What is the value of x in the sequence? I think we have already done a similar type of question before. ये वाला जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न आई थिंक किसी क्वेश्चन में, किसी वीडियो में तो डेफिनेटली किया गया है. नाउ इसको देखते हैं. सो बेसिकली इट सेज 24. ओके, x. ओके, नाउ उसके बाद अगला क्या है 12. ठीक है, उसके बाद अगला क्या है 18, उसके बाद क्या है 36, उसके बाद क्या है 90, राइट. सो इफ यू सी this is multiplied by 3 by 2, so 12 multiplied by 3 by 2 will give you 18. Okay, 18 multiplied by 2, that is 36. 36 into 2.5 means into 5 by 2 is going to be 90. So basically यहाँ पे multiplication 1 by 2, multiplication factor 1 by 2 से बढ़ रहा है, right? तो यहाँ पे multiplication factor क्या होना चाहिए 1, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 by 2. सो 24 इंटू 1 by 2 12, 12 इंटू 1 12. सो एवरीथिंग इज बीइंग सेटिस्फाइड. सो हियर आई कैन से माय आंसर ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. व्हाट डज इट सेज? नाउ इट सेज p इज प्लस. ओके, q इज माइनस, r इज मल्टीप्लीकेशन, s इज डिवीजन. नाउ व्हाट डू आई हैव? आई हैव 60, 15, then I have 3, then I have 20, then I have 4, and that is equal to 20. Okay, now my job is to figure out what we can do. Okay, so अगर मैं इसको 60 को 15 से डिवाइड करता हूँ, so what I am going to get? I am going to get 4. Now 4 plus 3 is 7. 4 multiplied by 3 is 12. अब अगर मैं 7 लेके करूँगा और 4 minus 3 is 1. सो 1 को 20 और 4 मिला के नहीं बना सकते, 7 को 20 और 4 मिला के भी नहीं बना सकते, राइट? सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी वेरी कैची. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू यूज अ साइन ऑफ माइनस. ओके, लेट्स सॉल्व दिस. ओके, सो BOD mass will be holding true, right? So if BOD mass is holding true, so first we are going to multiply. So 15 into 3 is going to be what? 45. 60 minus 45 will give you 15. मतलब इससे मुझे 5 चाहिए. ठीक है, इससे 5 कैसे आएगा? डिवीजन प्लस. सो 15 इंटू 3 45, 45, 60 माइनस 45 विल गिव यू व्हाट? 15. 15 प्लस 5 इज गोइंग टू बी व्हाट? 20. डज इट मैच? यस. सो फर्स्ट साइन इज नेगेटिव, नेगेटिव इज गोइंग टू बी q. सेकेंड साइन इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज व्हाट? r. थर्ड साइन इज एडिशन, एडिशन इज व्हाट? p. And next sign is division, that is s. So QRPS is going to be my answer. So QRPS is going to be my option B. I can directly solve this question. But if you are confused, if you don't know what you need to do, सारे option use कर लो. It might take 2 minutes, 2.5 minutes. लेकिन सारे ऑप्शन यूज कर लोगे, सो 2.5 मिनट्स में आपका आंसर गारंटी के साथ आएगा, आएगा ही आएगा.
राइट. सो एंड आपको तो सारे ऑप्शन चेक भी नहीं करने, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू चेक फर्स्ट ऑप्शन इट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड ऑप्शन यू आर गोइंग टू गेट इट राइट. राइट. अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि लेट से आंसर सेकंड नहीं होता, आंसर फोर्थ होता, तो कितने ऑप्शन चेक करने पड़ते? तो भी टोटल 3 ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन आपने चेक किया गलत है, कोई बात नहीं. दूसरा ऑप्शन आपने चेक किया वो भी गलत है, कोई बात नहीं. तीसरा ऑप्शन आपने चेक किया वो भी गलत है, कोई बात नहीं. तो चौथा चेक नहीं करना, क्योंकि पहले 3 गलत है तो चौथा ही आंसर होगा. राइट. सो इन एनी केस अगर आपको कभी भी ऑप्शन के थ्रू जाना पड़े तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस यू नीड टू चेक इज 3. अगर 3 के तीनों गलत है तो चौथा पक्का ही सही है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है अपन को उसमें. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. वॉट कम्स एट अ प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. ठीक. अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ जैन से जैन, ओके, सो जैन, देन फिर क्या है जैन, फिर क्या है दिसंबर, फिर क्या है अक्टूबर, फिर क्या है एक्स, फिर क्या है मार्च, फिर क्या है अक्टूबर, फिर क्या है वाई, फिर क्या है सितंबर. अब यहाँ पे व्हाट लॉजिक आई एम गोइंग टू यूज, आई एम गोइंग टू यूज द बेसिक लॉजिक ऑफ अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट का लॉजिक क्या होता है कि 1 to 26 अल्फ़ाबेट चलते हैं, बट इफ आई एम गोइंग टू गेट सम अल्फ़ाबेट दैट इज 27th. सो व्हाट इज 27th अल्फ़ाबेट? दैट इज अगेन गोइंग टू बी ए, बिकॉज साइकिल इज गोइंग टू रिपीट इट सेल्फ. राइट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गिव दिस अ नंबर. सो जैन इज 1. जैन पहला महीना होता है. राइट. अगर मैं जैन से जैन जा रहा हूँ तो कितने महीने आगे जा रहा हूँ? 12 महीने आगे जा रहा हूँ. राइट. जैन से दिसंबर जा रहा हूँ, सो जैन से दिसंबर कितने महीने का इंक्रीमेंट है? 11 महीने का, क्योंकि जैन तो पहला महीना है, दिसंबर आखिरी महीना है, तो 11 महीने का डिफरेंस. राइट. दिसंबर के बाद अक्टूबर की बात करें, सो दिसंबर से अक्टूबर का कितने महीने का डिफरेंस आएगा? 10 का. तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 9 का. राइट. सो अक्टूबर 10 महीने, तो 11वां महीना नवंबर, 12वां महीना दिसंबर, उसके बाद 7 और महीने, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 7th मंथ ऑफ द ईयर, दैट इज गोइंग टू बी जुलाई. तो इसका मतलब अपना ये ऑप्शन तो चला गया. राइट. अब यहाँ देख लेते हैं. सो 9, इसके बाद यहाँ पे जुलाई के बाद देखेंगे तो 7, यहाँ पे 8 का इंक्रीमेंट आ रहा है. फेयर इनफ. 8 के बाद मार्च से अक्टूबर जाएंगे तो कितने का आएगा? मार्च इज 3rd मंथ, अक्टूबर इज 10th मंथ, तो 7 का डिफरेंस आ रहा है. तो यहाँ पे कितने का आएगा? 6 का. सो अक्टूबर 2 हो गया. राइट. अक्टूबर 10 हो गया. नवंबर, दिसंबर 2 महीने, 4 और महीने आगे जाना है, तो कहाँ पे पहुँचेंगे? अप्रैल पे. तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी, दैट इज जुलाई एंड अप्रैल. सो व्हेनेवर यू सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, थिंक ऑफ these टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. जनरली हम अल्फ़ाबेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम करस्पॉन्डिंग नंबर्स को करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट्स को करस्पॉन्डिंग नंबर्स असाइन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल E इज़ 5, F इज़ 6, I इज़ 9. सो हम जनरली वो असाइन कर देते हैं. लेकिन अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो भी हम करस्पॉन्डिंग नंबर असाइन कर सकते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि A B C C A B. ओके. सो बेसिकली यहाँ पे कितने सी दिख रहे हैं हमको? 3. यहाँ पे कितने बी दिख रहे हैं? 3. सो अगर मैं यहाँ पे कितने बी दिख रहे हैं? 2. यहाँ पे कितने सी दिख रहे हैं? 2. ओके. सो आई गॉट ए, बी, जस्ट मेकिंग अ रैंडम गेस. बी 2 बार, सी 3 बार. तो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी डाल दिया मैंने. उसके बाद ए, बी 2 बार, सी 3 बार, सी 3 बार. वापस से पूरा मैच कर रहे हैं. फिर ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार. डज इट मैच? यस. सो आखिरी वाला कौन सा होना चाहिए? सी होना चाहिए. सी के जस्ट पहले कौन सा होना चाहिए? यहाँ पे ए होना चाहिए. ए के जस्ट पहले कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए. इसके जस्ट पहले कौन सा होना चाहिए? सी होना चाहिए. तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी. सो इफ़ यू सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जनरली ये वाली जो सीरीज़ होती हैं ये अपने पैटर्न ऑफ 4 पे डिवाइड होती हैं, पैटर्न ऑफ 5 पे डिवाइड होते हैं, पैटर्न ऑफ 6 पे डिवाइड होती हैं. ये बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न है इनका डिवीजन का. सो हम
जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे सो हमेशा एक चीज़ देखिए कि कौन सी चीज़ कितनी बार आ रही है, और आप ये देखिए कि यहाँ पे आगे नहीं जा रही है सीरीज, क्योंकि आप यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स ए बी और सी ही हैं, मतलब पैटर्न इवेंचुअली कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं आ रहा है कि ए एक बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 3 बार आएगा, या फिर ए 2 बार आ गया, ए 1 बार आया, फिर अगले पैटर्न में ए 2 बार आया, फिर अगले पैटर्न में ए 3 बार आया। लेकिन वो पॉसिबिलिटी अपन को दिख नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि सी 3 बार आ रहा है और यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 2 बार तो आ ही रहा है, राइट, और 2 बार के बीच में एक गैप भी है, तो इसका मतलब सी 3 बार बनना चाहिए अपने पैटर्न में। सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकम एक्सट्रीमली इजी। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन कि P जो है वो P इज अ ब्रदर ऑफ Q एंड R। ओके, सो P Q R, सो P इज द ब्रदर का मतलब P मेल है, राइट। Q एंड R का जेंडर हमें नहीं पता, ठीक है। जब भी हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि हमारा काम है जेंडर फिगर आउट करने का, कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। अगर हम जेंडर फिगर आउट नहीं कर पा रहे सो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन में अटकेंगे ही अटकेंगे, राइट। सो उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एस इज आर्स मदर, एस जो है वो आर की माँ है, सो ये तो फीमेल हो गई क्योंकि मदर है। जो टी है वो पी का फादर है, मतलब अगर आर एस आर की माँ है तो एस तो पी की भी माँ होगी, क्योंकि पी जो है वो एस और आर का भाई है, राइट। अब जो टी है वो पी का फादर है, इसका मतलब अगर टी पी का फादर है तो आर का भी फादर होगा ही होगा, क्यू का भी फादर होगा ही होगा। इसका मतलब जो टी होना चाहिए मेल होना चाहिए और टी और एस कपल होने चाहिए। मतलब टी फादर है, एस मदर है, और उनके 3 बच्चे जिनके बारे में हमें पता है कि एक पी है वो तो लड़का है, बाकी दोनों के जेंडर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं। एस एंड टी आर कपल्स, ये तो ट्रू है। क्यू इज टी सन, क्यू टी का सन है, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता है क्यू टी की संतान है। सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, सेकंड स्टेटमेंट पता नहीं। टी क्यू का फादर है, टी का जेंडर हमें पता है, टी क्यू का फादर है, ये तो ट्रू है। एस पी की मदर है, ये हम ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं, अगर एस आर की मदर है तो एस पी की भी मदर होगी होगी। आर टी की डॉटर है, आर के जेंडर के बारे में हमें कुछ नहीं पता तो हम कुछ नहीं कह सकते। पी एस का सन है, ये ट्रू है क्योंकि पी का जेंडर हमें पता है, पी मेल है। सो हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ओनली 4, 4 स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में ट्रू है। तो जब भी अपने पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा तो अपना काम हमेशा होगा कि अपन को जेंडर फिगर आउट करना है, ये जरूरी है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ NO is coded as 210, सो हम लोगों ने YouTube पे बहुत ज़्यादा सेशन किए हैं इस पे, क्या कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, QA, सी सेट में हमने काफ़ी सारे सेशन किए हैं, और अल्फ़ाबेट वाले जितने भी सेशन किए हैं लॉजिकल रीजनिंग के, सब में अल्फ़ाबेट में हमेशा एक चीज़ बोली है कि जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन अल्फ़ाबेट का आए कभी भी उसको अल्फ़ाबेट के तरीके से मत करिए, हमेशा करस्पॉन्डिंग नंबर के फॉर्म में लिखिए। सो अगर मैं NO की बात करूँ, सो N का नंबर है 14, O का नंबर है 15, और यहाँ पे इसकी जो कोडिंग गिवन है ये 210 गिवन है, राइट। सो 14 × 15 210 होता है, ठीक। अगर मैं NOT की बात करूँ, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। 14 × 15 तो 210 है, 210 × 20 कितना आएगा? 4200, ओके। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। क्या ये चीज़ हमारी मैच हो रही है? हाँ। थर्ड वाला जो गिवन है उससे अपन कंफर्म कर लेते हैं। नोट क्या कह रहा है? NOT एंड E। N का नंबर क्या है? 14, O का नंबर क्या है? 15, T का नंबर क्या है? 20, E का नंबर क्या है? 5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4200 × 5, क्योंकि NOT की वैल्यू तो नॉट की वैल्यू तो 4200 है, तो इसमें 5 और मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 21,000 एंड दैट इज गिवन टू अस। ओके, सो अगला क्या है? NOTES। इसका मतलब 21,000, उसमें हमें S का नंबर मल्टीप्लाई करना है, और S का नंबर क्या होता है? S का नंबर होता है 19। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट 21,000 × 19। सो 0 0 0, 19 × 1 यूनिट डिजिट आ गई 9, तो इसका मतलब अपना एक ही आंसर पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन A।
पूरा मल्टीप्लाई करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्रांस FRANCE, F is 6, this is 5, this is 4, this is 3, this is 2, this is 1. Okay. Now what do we have? We have Germany, MANY. This is 9, E is 1, R is 5, 8, 4, 3, 7. Okay. Now इस क्वेश्चन में कुछ तो कैची है, एंड व्हाई इट इज दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए E 1 है, यहाँ पे भी E क्या है, 1 है। इसका मतलब E की वैल्यू 1 है, उन्होंने E की वैल्यू 1 असाइन कर दी है, R की वैल्यू 5 उन्होंने असाइन कर दी है, राइट। A की वैल्यू 4 असाइन उन्होंने कर दी है, राइट। तो जहाँ पे भी A यूज़ होगा, A का नंबर होगा 4। सो अभी मुझसे पूछा है कि यमन की वैल्यू क्या होगी, राइट। सो Y क्या होगा, सो E का नंबर तो हमें पता है 1 है, तो दूसरा और चौथा नंबर 1 होना चाहिए, उससे अपना पहला ऑप्शन तो चला गया, ठीक है। Y की वैल्यू 7 होनी चाहिए, Y की वैल्यू 7 होनी चाहिए, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी चला गया। M की वैल्यू क्या होनी चाहिए, M की वैल्यू 8 होनी चाहिए, M की वैल्यू 8 होनी चाहिए, मतलब ऑप्शन डी बचा, ऑप्शन सी चला गया। तो इसका मतलब अपना आंसर तुरंत आ चुका है, पूरी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले पूरा आंसर निकालते हैं, फिर हम ऑप्शन में मैच कराते हैं। वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, और जैसे ही करते जाइए वैसे ही ऑप्शन भी देखते रहिए, क्योंकि कई बार होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बीच में ही उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। चलिए अगले पे चलते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस। ओके, सो वी हैव 1, देन 3, देन 6, देन 11, देन 18, देन x, देन 42। ओके, सो वेन एवर वी हैड सीरीज, राइट। सो सीरीज में अपन पहला काम क्या करते हैं, अपना पहला काम ये है कि डिफरेंस देखो, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, यहाँ पे क्या आ रहा है, 5, यहाँ पे क्या आ रहा है, 7। सो अगर आप देखिए तो डिफरेंसेस प्राइम नंबर है, तो 7 के बाद अगला डिफरेंस क्या होगा, 9, सॉरी 7 के बाद अगला डिफरेंस क्या होगा, 11। सो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 29। अगला डिफरेंस क्या होगा, 13। सो 29 + 13 42। क्या ये सारी वैल्यूज मैच कर रही हैं, हाँ कर रही हैं, तो आंसर अपना क्या होगा इसका, 29। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व, आराम से हम कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फुटबॉल मैच है, टीम पी इज प्लेइंग अगेंस्ट क्यू, वाज बिहाइंड, मतलब पी जो है वो क्यू के पीछे थी 3 गोल। मैच के 10 मिनट खत्म होने तक क्या पी मैच जीती है, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर 10 मिनट पहले की बात करूं, 10 मिनट्स बिफोर की बात करूं, तो अपने पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दिस इज पी, दिस इज क्यू। पी 0 पे है, क्यू 3 पे, दैट इज 1 पॉसिबिलिटी, राइट। पी 1 पे है, ये 4 पे है, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। ये 2 पे है, ये 5 पे है, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। ये 3 पे है, ये 6 पे है, अनदर पॉसिबिलिटी, राइट। अगर मैं ये बोलूं कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या पी मैच जीती है, ठीक है। टीम पी स्कोर्ड 4 गोल्स इन लास्ट 10 मिनट्स, ओके। इसने 4 गोल किए, तो लास्ट के 10 मिनट मिला के फाइनल स्कोर अगर देखें तो पी का स्कोर हो गया 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, राइट। लेकिन लास्ट के 10 मिनट में क्यू ने कितने गोल किए, क्या हमारे पास इसका कोई आंसर है, इसका आंसर तो नहीं है। सो बेसिकली हमें एंड में क्यू के टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने हैं उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, मतलब पहले स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट समझते हैं, क्यू ने टोटल 4 गोल किए, तो इसका मतलब 4, 4, 4, 4। सो क्यू का टोटल गोल 4 है। अगर ये वाला सिनेरियो लें तो क्यू का 4 है, पी ने कितने गोल किए, हमें सेकेंड स्टेटमेंट से हमें पी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, राइट। पी ने 10 मिनट में गोल किए नहीं किए, नहीं, कुछ नहीं पता, राइट। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट कंबाइन कर लूँ, वो ये कहता है कि पी ने लास्ट के 10 मिनट में 4 गोल किए और क्यू ने टोटल 4 गोल किए,
तो इसका मतलब अगर मैं पहला वाला सिनारियो लूँ, क्या पी मैच जीता? नहीं, मैच ड्रॉ हुआ। अगर मैं सेकंड सिनारियो लूँ, क्या पी मैच जीता? हाँ जीता। क्या मैं अगर तीसरा सिनारियो लूँ, क्या पी मैच जीता? हाँ जीता। पहले केस में मैच पी नहीं जीत रहा, पहले केस में ड्रॉ हो रहा है, सेकंड केस में जीत रहा है, थर्ड में जीत रहा है, फोर्थ में जीत रहा है। इसका मतलब ये है कि until unless I have some additional information, मैं गारंटी से नहीं बोल सकता कि पी मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा। मैच ड्रॉ भी हो सकता है, राइट। एक केस ऐसे है जहाँ पे मैच ड्रॉ होगा, बाकी सारे केसेस में मैच जीतेगा, राइट। सो लेकिन उस एक केस को क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते until unless we have एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन बिना एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सॉल्व नहीं हो सकता। सो फोर्थ ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन आफ्टर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। सो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ओके, now a mobile phone has been stolen. There are 3 suspects, P, Q and R. They are questioned knowing that only one of them is guilty. Their responses are given. Who stole the mobile phone? Okay. So I am not going to think much. I am directly going to mark my answer as cannot be determined. Okay. Now why I am going to mark my answer as cannot be determined? Why I am not thinking much in this question? क्योंकि 3 लोग हैं, एक आदमी ने चोरी की, ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर पढ़िए तो हर आदमी के 2 स्टेटमेंट हैं, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि जिन लोगों ने चोरी नहीं की वो हमेशा सच बोलेंगे? नहीं पता, राइट। जिसने चोरी की वो हमेशा झूठ बोलेगा, ये भी नहीं पता। जिसने चोरी की उसके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं या एक स्टेटमेंट गलत है, वो भी हमें नहीं पता। तो इसका मतलब जब हमें यही नहीं पता कि कितने लोग सच बोल रहे हैं, कितने लोग झूठ बोल रहे हैं, कितने स्टेटमेंट सही हैं, कितने स्टेटमेंट गलत हैं, क्या हम इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी कर सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक जनरल परसेप्शन लोग ले लेते हैं कि जो चोर है उसके दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे, बाकी जो लोग चोर नहीं है उनके स्टेटमेंट सारे सही होंगे, जबकि ऐसी चीज़ क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है। सो जब इस टाइप की एम्बिग्विटी आ जाती है, सो इस क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है, क्योंकि हमें एक्चुअली किसी के बारे में पता नहीं है, राइट। ये हमारा अजम्पशन है कि चोरी करने वाले के सारे स्टेटमेंट गलत होंगे और जो चोरी नहीं कर रहे उनके बाकी स्टेटमेंट सही होंगे। ये अजम्पशन है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जिस आदमी ने चोरी की उसके सारे स्टेटमेंट गलत हैं और जिन लोगों ने चोरी नहीं की उनके सारे स्टेटमेंट सही हैं। सो बेसिकली इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज वी कैन नॉट फिगर दैट आउट, राइट। Now let's look at this question. There are 3 teams, P, Q and R participated in a tournament. A win fetches a team 2 points and a draw 1 point. ठीक है, P, Q, R 3 लोग खेल रहे हैं। सो P है, Q है, R है, राइट। ये लोग मैच खेल रहे हैं। सो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। ये लोग मैच खेल रहे हैं, ठीक। अब P अपने साथ तो मैच खेलेगा नहीं, और हर आदमी के साथ खेल रहा है। मतलब P Q के साथ खेल रहा है, R के साथ खेल रहा है, Q P के साथ खेल रहा है, R के साथ खेल रहा है, और R P के साथ खेल रहा होगा और Q के साथ खेल रहा होगा, और टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे अपने 3, राइट। अब विनिंग के 2 पॉइंट है, ड्रॉ का 1 और हारने वाले को 0, ठीक है। अ टीम स्कोर्ड एग्जैक्टली 1 गोल ईच टीम, मतलब P ने टोटल 1 गोल किया है, Q ने टोटल 1 गोल किया है और R ने भी टोटल 1 गोल किया है, तीनों ने 1 गोल किया है, ठीक है। P के कितने पॉइंट है? 3। तो 3 पॉइंट तो एक ही तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि P 2 मैच खेल रहा है, तो 2 ही तरीके से आ सकते हैं, 1 विन और 1 ड्रॉ। सो P का 1 गोल है और 1 विन है, 1 ड्रॉ है, ठीक है। Q के 2 पॉइंट्स हैं। Q के 2 पॉइंट का मतलब यह है कि या तो उसकी 1 विन है या उसके 2 ड्रॉ है, ठीक है। R का केस क्या है कि R का 1 विन 1 पॉइंट है, मतलब R का 1 ड्रॉ है, तो R का 1 ड्रॉ तो पक्का है, ठीक है। R का 1 ड्रॉ 1 लूज है, ठीक है। Q के अगर 2 ड्रॉ नहीं होंगे तो ये केस पॉसिबल ही नहीं होगा, तो इसलिए Q के 2 ड्रॉ होंगे। Q के 2 ड्रॉ होंगे मतलब Q का R के साथ भी ड्रॉ होगा और P के साथ भी ड्रॉ होगा। अब जो R है वो P से हार रहा है, क्योंकि Q का जो P के साथ मैच है वो ड्रॉ है, Q का R के साथ मैच भी ड्रॉ है, तो P की 1 विन आएगी, कहां से आएगी? R के साथ आएगी।
तो P R के साथ जीतेगा वो 1-0 से जीतेगा। 1-0 से क्यों जीतेगा? क्योंकि P को टोटल एक ही गोल करना है, और एक ही गोल करना है और मैच भी जीतना है। तो इसका मतलब P के टोटल नंबर ऑफ गोल्स जो एक होंगे वो R के अगेंस्ट होंगे, क्योंकि उसको वो मैच जीतना ही जीतना है। तो R P के अगेंस्ट 0-1 से हार गया, ठीक है। अब P और कितने गोल कर सकता है? P 0 गोल कर सकता है, ठीक है। और P का Q के साथ मैच ड्रॉ है, इसका मतलब 0-0 का ही केस हो सकता है, क्योंकि मैच ड्रॉ करना है, राइट। सो Q का हो गया 0-0। अब Q को एक और ड्रॉ करना है, तो Q का और एक गोल बाकी है, तो Q को एक गोल करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? R। R का भी एक गोल बाकी है, मतलब R ने भी एक गोल किया होगा, तो Q का R के साथ जो ड्रॉ हुआ होगा वो 1-1 पे हुआ होगा। मतलब इसका मतलब R ने जो एक गोल किया है वो Q के अगेंस्ट किया है और वो मैच ड्रॉ हो गया है। R ने P के अगेंस्ट एक गोल खाया है और 0 गोल्स किए हैं। सो बेसिकली यहां से हमारा अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, द रिजल्ट ऑफ मैच बिटवीन P एंड Q एंडेड इन ड्रॉ विद अ स्कोर ऑफ 0-0। पहला वाला तो ट्रू है। The number of goals scored by R against Q is 1. That is also true, क्योंकि ये 1-1 से ड्रॉ हो रहा है, तो R ने Q के अगेंस्ट टोटल एक गोल किया है। That statement is also true. So answer of this question comes out to be option C. That is both 1 and 2 are right. अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। There are 7 places A, B, C, D, E, F and G in a city connected by various roads A, B, A, C, C, D, D, E, BF, EG, FG. Okay. A is 6 kilometers south of B. Okay. So what I am going to do? I am going to plot B. So B यहाँ पे कहीं होगा, A यहाँ कहीं होगा, और A B के 6 किलोमीटर साउथ पे, ठीक है। A is 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ C. A C के 10 किलोमीटर वेस्ट पे, मतलब C यहाँ पे कहीं होगा, 10 किलोमीटर वेस्ट पे होगा। C का वेस्ट तो ये होगा। D इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E। ओके, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इसी के रिस्पेक्ट में चलूंगा। C इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D। तो C जो है वो D के नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, और ये डिस्टेंस 6 होगी, राइट। D जो है वो E के 5 किलोमीटर ईस्ट में है, मतलब E यहाँ कहीं होगा, और ये 5 किलोमीटर ईस्ट हो जाएगा। E का ईस्ट तो ये होगा। एक बात याद रखिए कि जो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस है वो यही होगी। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। मतलब E के ईस्ट में है, मतलब E इस साइड होगा और D इस साइड होगा। ओके, F B के 9 किलोमीटर वेस्ट में है, तो F जो होगा वो B के 9 किलोमीटर, ओ आई एम सॉरी, दिस इज अ मिस्टेक। वेस्ट का मतलब हो गया, इसका वेस्ट ये हो गया, सो F यहाँ पे आएगा। ओके, F इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। F इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। ओके, अ पर्सन ट्रेवल्ड फ्रॉम D to F फ्रॉम दीज रोड्स। ओके, so basically what roads we have AB is a road, AC is a road, CD is a road, DE is a road, BF is a road, FG is a road. ओके, आदमी को कहाँ से जाना है? D से जाना है, कहाँ पे जाना है? F पे जाना है। सो यहाँ पे जाएगा वो 6, D से C से आगे जाएगा 10, 16, 16 और 9, 16 और 6, 22, 22 और 9, 31. So answer of this question is going to be 31. So just whenever you have these kind of questions, always draw very carefully, otherwise you might get it wrong. So basically left, right, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इन सब के बारे में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. सो whenever you have a question of this, always make this diagram and figure things out. Okay, now let's move on to the next one. What does it says? It says that in a certain code 64 is written as this. So जब भी ये values दिखें तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि 64 is 4 cube, 343 is 7 cube. अगर ये चीज़ क्लिक नहीं कर रही है, so more likely this question is going to be very difficult. 216 is 6 cube, 729 is 9 cube, 512 is 8 cube. सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, 4 क्यूब से 7 क्यूब पे जा रहे हैं.
6 क्यूब से 9 क्यूब पे जा रहे हैं, मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब 8 क्यूब से 11 क्यूब पे जाएंगे, 3 का डिफरेंस आएगा। 11 क्यूब क्या होगा, 1331, दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी। अगर आपने 11 क्यूब फिगर आउट भी कर लिया है और आपको ये लगता है 11 क्यूब की वैल्यू नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे? सो 11 क्यूब की वैल्यू होगी 11 इंटू 11 इंटू 11, और अगर आप यूनिट डिजिट देखिए, सो प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट आ रही है 1, और वो एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, एंड दैट्स ऑप्शन बी। सो बेसिकली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है अपन को। अगला क्वेश्चन, हाउ इज Q रिलेटेड टू P? मतलब Q जो है वो P की कौन लग रही है, राइट? अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कि Q कौन लग रही है, मतलब इसका मतलब ये Q P की बहन है, Q P का भाई है, Q P की माँ है, Q P का पिता है। सो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें, अगर मैं कॉम्प्रिहेंड करूं, तो यहाँ पे P का जेंडर पता होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ हमें किसका जेंडर पता होना ज़रूरी है? Q का जेंडर पता होना ज़रूरी है। सो और P और Q का रिलेशन, राइट? सो पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट तो नहीं होगा, मैं सीधे कैंसिल कर देता हूँ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें P के बारे में बात की है, लेकिन Q के बारे में अपन को कुछ नहीं पता। सेकेंड स्टेटमेंट से भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें Q के बारे में बात कर रहा है, Q के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर मैं कंबाइन बात करूं, R इज द फादर, R's फादर इज द ब्रदर ऑफ Q, अगर मैं दोनों को कंबाइन भी करूंगा तो भी मैं कहूंगा मैं आंसर नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि R का पिता Q का भाई है। क्या मुझे Q का जेंडर पता चल रहा है? Q का जेंडर तो अभी भी नहीं पता चल रहा। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर लूँ तो भी मुझे Q का जेंडर नहीं पता चलेगा। सो बेसिकली इवन आफ्टर कंबाइनिंग बोथ द स्टेटमेंट्स मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली कह रहा है कि Q का जेंडर पहले बताओ, बाद में देखेंगे रिलेशन क्या है। सो अगर यहाँ पे मुझे Q का जेंडर ही नहीं पता चल रहा, तो मैं रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करूँगा? तो इसका मतलब मेरा आंसर ऑफ जो होगा इसका, वो होगा ऑप्शन डी। सो हमारा जो काम है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये देखना कि कहाँ पे हमें जेंडर की ज़रूरत है, किसके जेंडर की ज़रूरत है, किसके जेंडर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें पी के जेंडर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग क्यू पी का कौन लगता है। तो क्यू माँ है, बहन है, पिता है, भाई है, चाचा है, चाची है, उसके बारे में हमें, तो अगर चाचा है तो मेल होना चाहिए, मौसी है तो फीमेल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्यू के जेंडर के बारे में दोनों स्टेटमेंट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, इसलिए इसका आंसर सीधे कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, और आई वुड कॉल इट ऑप्शन डी। With this, all the questions are done of CSAT 25 logical reasoning. Thank you.